everyone. Today we are going to start with our new topic and your topic name is motion in straight line. But before coming to our topic, let me tell you some basic terms. In our last class, we have discussed about the types of motion. Now tell me one thing. As we have studied that there are different branches of science like chemistry, physics and biology. Similarly, the branch of physics in which we deal about the object are either in rest or motion, that branch of physics is called the mechanics. So, first of all, we will study about mechanics. So, mechanics is what? Mechanics, it is the branch of physics which deals with the study of object in rest, either in rest or motion. So mechanics is basically of two types. One type is the kinematics and second type is dynamics. Kinematics is that branch of mechanics in which we study about motion with respect to time. Means how motion depends on time. While in dynamics, we will study the cause of motion. Means how motion occurs. So, dear students, in class 9, we will study about the kinematics parts. Okay. So, this was all about mechanics. Is that clear? Now come to our next topic, which is the physical quantities. So what are physical quantities? Physical quantities are the quantities which are measured in numbers. And in physics, we study about two types of physical quantity. One is scalar quantity and the second one is vector quantity. So simply, what is scalar quantity? Scalar quantity is a kind of physical quantity that has only magnitude. That has only magnitude. तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मीन सिंपली मैग्नीट्यूड को हम और क्या कहते हैं? साइज. Is that clear? And vector quantity is a kind of physical quantity that has both magnitude as well as direction. Okay, so scalar quantity like means as I am saying that suppose मैंने कहा कि मुझे 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो यहां मैंने कोई डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया है. आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है. मैंने मेजर नहीं किया आइदर आई हैव टू मूव इन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन. सो इट हैज ओनली द साइज and that size is in number because मैंने कहा था फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? नंबर की फॉर्म में होती है. तो 40 किलोग्राम. ओके, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. और 20 किलोमीटर, यहां भी मैंने डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया. एंड सपोज इफ आई से कि मुझे 40 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो क्या ट्रेवल करना है? टुवर्ड नॉर्थ साइड. ओके, और यू में से फ्रॉम सिरसा टू
मल्लेका. In that case, that is vector quantity like displacement. तो displacement में क्या होगा? Size as well as direction. So this was all about the physical quantity. Now we are going to start with our main topic, and your topic name is the motion in straight line. Now let me give you some examples. Suppose I am saying that this is a person and this person is here at A and this person is moving on the straight path. तो ये एक straight path है, तो मैं क्या कहूंगी? This boy is moving in a straight line path, means the boy is coming straight line motion. In the similar way, this is case first. Now let me give you one more example, and the second example is, suppose there is a house and this house has 2 stories, and if we throw a stone from the second floor, or you may say from the second story of a building, then the stone will comes down. Stone क्या है? ऊपर से नीचे आएगा, and this stone will also, again the stone क्या है? Stone will cover the straight line path. So this is second case. There is one more case. Let me give you example of an aeroplane. So what happened during case of aeroplane? Suppose this is an aeroplane and aeroplane moves on the runway. Okay, some time के बाद क्या होगा? एरोप्लेन जो है वो एलिवेट्स करेगा सर्टेन हाइट से और क्या करेगा? रेज कर जाएगा. तो ये जो सर्टेन हाइट है, इस हाइट को हम क्या कहते हैं? H slanting height. But again, notice down one thing. Please note it down that this aeroplane is again covering the straight line path. तो इन तीनों केसेस से क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हो, as this boy is moving, either ऑब्जेक्ट वर्टिकल एक्सिस में हो या ऑब्जेक्ट जो है स्लांटिंग हाइट से मूव कर रहा हो, तो क्या होगा? तीनों केस में ऑब्जेक्ट जो होगा वो किस में होगा? ऑब्जेक्ट विल बी इन स्ट्रेट लाइन मोशन. इज दैट क्लियर? नाउ लेट मी टेल यू इंपॉर्टेंट थिंग कि स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर ऑब्जेक्ट जो होता है एंड अगर हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड आउट करना है, देन रेफरेंस पॉइंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं. सपोज हमने कहा कि ऑब्जेक्ट अगर एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और आइदर इन जेड एक्सिस. अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट्स आप मैथ्स में स्टडी करते हो एक्स वाई जेड, तो कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ओ, इसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन. ओके, दिस ओरिजिन इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो ओ पॉइंट ओरिजिन है उसको हम क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट. इज दैट क्लियर? नाउ let me tell you the importance of reference point with number line concept. So with number line concept, अब नंबर लाइन कॉन्सेप्ट क्या होता है? सपोज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ और एक्स एक्सिस. ओके, this is O point, here distance is 1 up to 8 kilometers. अब हमने क्या कहा कि सपोज अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या पर्सन, यहां हमने किसी पर्सन को लिया
वो पॉइंट O पे खड़ा है एंड इफ दिस पर्सन ट्रेवल्स अप टू पॉइंट 3, कि ये जो है 3 पॉइंट तक आता है, तो हमें इसका डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या पोजीशन फाइंड आउट करना है तो उसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? रेफरेंस पॉइंट की। विदाउट रेफरेंस पॉइंट वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो यहाँ देखो हमने क्या कहा, ये जो ओरिजिन यानी कि जो 0 है ये क्या है? इसका रेफरेंस पॉइंट। और ये जो 3 है ये इसका फाइनल पॉइंट है। अगर अब आपको पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है फ्रॉम 0 to 3, तो आप कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, तो 3 माइनस 0, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस हुआ रेफरेंस पॉइंट से वो कितना हुआ? 3 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? ओके, फर्दर कंसीडर कि अगर सपोज अब ये ऑब्जेक्ट यहां से चलता है, अगर ऑब्जेक्ट 3 पे था और 3 से मूव करके जो ऑब्जेक्ट है वो फाइनली कहां आ गया? 8 तक। ओके, अब नाउ प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द डिस्टेंस। अब इस केस में क्या होगा? जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? दिस 3rd नंबर डिजिट से, जहां से वो चलना स्टार्ट हुआ। तो अगेन इस केस में डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस फ्रॉम 3 to 8, तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप? डिस्टेंस फ्रॉम 3 to 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज होगा तो जो ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट होगी, ऑब्जेक्ट की किसकी मेजरमेंट? तो डिस्टेंस की जो मेजरमेंट होगी वो भी क्या होगी? चेंज। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंस पॉइंट, कि अगर हमें रेफरेंस पॉइंट को, रेफरेंस पॉइंट जो है रेफरेंस पॉइंट होगा, देन वी कैन इजीली ऑब्जर्व और मेजर द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Is that clear? So depending upon this topic, there is one important topic, and that topic is the distance and displacement. Distance and displacement. So distance and displacement is what? Again, let me give you one simple example. Suppose this person is at point A, means इसका जो रेजिडेंस, इसका जो हाउस है वो पॉइंट A पर है। ओके, अब इस पर्सन को क्या करना है? He has to go to his friend's house, और ये जो A पॉइंट है ये यहां से क्या करेगा? इसका फ्रेंड का जो हाउस है ये जो है ये पॉइंट D पर है, सेकंड हाउस। ओके, अब ये पर्सन क्या करता है? ये जो है सपोज से गिव द नेम राम। राम ने क्या किया? राम जो है, राम विल मूव टुवर्ड नॉर्थ। बी पॉइंट की ओर जा रहा है, डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ। सपोज इसने ट्रेवल किया 3 किलोमीटर। ओके, एंड फर्दर इट मूव टुवर्ड ईस्ट। ओके, अब ये क्या कर रहा है? ईस्ट की ओर जा रहा है और यू में से टुवर्ड सी गया, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो किया 2 किलोमीटर। ओके, एंड फाइनली ही रीचेस टू हिज फ्रेंड्स हाउस आफ्टर कवरिंग 3 किलोमीटर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इस राम ने कितना जो है वो डिस्टेंस कवर किया, तो आप कैसे फाइंड आउट करते हो? तो आप लिखते हो सिंपली 3 + 2 + 3, क्या आएगा? 8 किलोमीटर। अब ये 8 किलोमीटर कैसे आया? तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ, कि उसने कितना एक्चुअल पाथ कवर किया या कितना टोटल पाथ कवर किया। तो सिंपली डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज डिफाइंड
ऑब्जेक्ट से राम इज हियर, तो यहाँ पे राम ने कवर किया 8 किलोमीटर, तो इसका क्या है डिस्टेंस। अब क्या होता है, राम का एक जो फ्रेंड है वो आता है एंड ही टॉक्स टू राम। वो राम को क्या कहता है कि आपने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया बट आई हैव वन शॉर्टकट। और वो शॉर्टकट क्या करता है, आपको क्या करना है, स्ट्रीट से होकर जाना है एंड विद द लेस टाइम आप क्या करोगे, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में लेस डिस्टेंस कवर करके आप कहां पहुंच जाओगे, अपने दूसरे फ्रेंड के हाउस। तो ये क्या है, ये जो है इसका, ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट को हम लिखते हैं यू से, और जहां उसने जाना था फाइनल पॉइंट उसका फ्रेंड का हाउस है, तो फाइनल पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब उसने उसको जो शॉर्टकट बताया टू रीच हिज फ्रेंड्स हाउस, तो जो शॉर्टकट पॉइंट होता है, और सिंपली क्या कहते हो आप, जो u और v के बीच का डिस्टेंस है या जो पाथ है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ किसमें होगा, बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अगर आपको सिंपली डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना है तो आप कैसे इसको डिफाइन कर देते हो, अगर आप u और v को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हो तो वो आपको क्या देता है, कंक्लूजन डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या कहा, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ between initial and final point of an object. ओके, अब सपोज मैंने कहा था कि डिस्टेंस क्या है, मैंने आपको कंसेप्ट बताया स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का। तो डिस्टेंस में उसने क्या कहा, वो यहां से यहां गया, डिस्टेंस में क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस में उसने क्या कहा कि मेरे फ्रेंड का जो हाउस है वो मेरे हाउस से कितना है, 8 किलोमीटर। तो सिंपली डायरेक्शन नहीं है, तो डिस्टेंस क्या है, सेकेंडली डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब उसने शॉर्टकट जो लिया था, शॉर्टकट में उसने क्या कहा, हमें इस स्ट्रीट के थ्रू जाना है, देन लेफ्ट टर्न करना है, मींस शॉर्टकट में क्या आती है, डायरेक्शन। तो जहां डायरेक्शन को हम मेंशन करते हैं दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। तो डिस्टेंस, थर्ड पॉइंट क्या हो गया, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे होगा, सपोज हमने इसी राम का कंसीडर किया एग्जांपल, तो राम ने क्या किया, राम यहां से चला, मूव करके अगर वापस अपने हाउस में जहां से चला वहीं आ जाता है, मीन जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। इज दैट क्लियर? देन डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस टोटल पाथ है, तो ऑब्वियसली अगर वो टोटल पाथ है तो वो डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, ग्रेटर और आइदर इक्वल। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट इज
लेस देन डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। अब जो डिस्टेंस है, द लास्ट पॉइंट, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर हमने एक सिंगल स्टेप भी रखा है तो वो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलाउंग क्या होगा, पॉजिटिव। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। So this is all about distance and difference between distance and displacement. अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोनों सिमिलर है, दोनों को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एस। बट क्या होगा, अगर डिस्टेंस होगा तो हम इसको सिंपली एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसके ऊपर एक एरो से शो करते हैं, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आप ये सिंबल लिख रहे हो तो वो किसका होगा, डिस्प्लेसमेंट का। और अगर आप सिंपली एस लिख रहे हो विदाउट एनी वेक्टर तो वो क्या होगा, डिस्टेंस का। ओके, अब डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो तो ऐसा यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है इसको मेजर करने का, दैट इज मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। Okay, so this was all about our today's topic, motion in straight line. We have discussed about the importance of reference point and also this difference between distance and displacement.